activities and got some very good feedback, as well as a lot of sharing between the states has taken place during this period, and I hope today also we will have that. So as you are aware, for the Nipun Bharat mission, we have already circulated the guidelines as well as the framework. The budgetary provisions also were already made under the Samagra Shiksha this year, and we have also shared a 5-year planning. बुलेट पॉइंट्स चाहिए, उसकी भूमिका बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब एजुकेशन सिस्टम से हैं, आप बुलेट पॉइंट बताएंगे तो हम समझ जाएंगे. सो आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश, द टीचर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर एजुकेटर्स. After the interaction with the presentations of the states, we will interact with you, and we request you to jot down while we are discussing 2 to 3 bullet points on areas on which you feel we should focus, the state governments and the central government should focus on priority basis to bring quality and sustainability into the education system. And like I was saying, it should be just bullet points. You don't have to give us very detailed backgrounds, data, figures. We all know it. Okay? All I need is your suggestions. Yesterday we interacted with several teachers, principals, and we got some excellent ideas and suggestions right from the grassroots. And that is why we are very keen to interact with all of you. So with these words, I think I will stop here, and Manish will just call out the states one by one. And if you could come here, make a presentation. Every state which comes here will, whoever is representing the state will also introduce the people sitting on the table of the states. So यहीं से introduce कर देंगे. Thank you. वो हम लोग. उसके लिए आपका ऐप बनेगा जब तक आप ये नहीं बताएंगे every month कि हाँ there is a change because of the training. Your training is not effective. तो ये थोड़ा आप लोग इसके ऊपर भी आप ध्यान देना चाहिए. We need, in fact, we need to strengthen our CRC and BRC. Yes. You need to have guidelines for them. You need to have indicators for them. गुजरात ने डेवलप किया है ऐप CRC BRC का. Maybe you can take the app from them. You know, discuss it. आज आप lunch time पे इनसे बात कर सकते हैं. That is what we are looking at. So Vidya Pravesh NCERT has already released, you are aware of that. तो उसको आप adopt कर लीजिए या अपने हिसाब से activities वगैरह उसमें add कर सकते हो और उसको priority पे लेके next academic session आपका कब से start होगा February? Sir, actually we have 2 sessions in fact. Education YouTube Ladakh mein, and with me I have Honorable Deputy Chief Executive Councillor Ladakh Autonomous Hill Development Council Siring Angchuk sir, and Executive Councillor Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil Mohsin Ali sir, and with me we also have Principal Right Mushtaq Ahmed, Teacher Sadiq Ali, and Ishi Tanzin who is HOD Right Kargil. So I just have 1 or 2 slides about the overall education sector in Ladakh. We have around 907 government institutions and 113 private schools in Ladakh, ma'am. And as you can see, the enrollment is around almost 50-50 at the student distribution. 26,000 students are in the 907 government schools and 27,000. Whether it is private or it is government aided or government, and it is the responsibility of the SCRT and SPD to ensure that it goes there. So Nishtha is free, all you have to do is register the teachers. And Nipun Bharat, whenever you do your workshops etc., you need to do a workshop with the private school teachers, principals also, to ensure Nipun is extended there. So the NEP document does not make a distinction between कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को निपुण कराना है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को. इट सेज ऑल चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री in grade 3 in 2025 should have achieved the learning outcomes. So all means private also. So all of you please ensure that you will only be able to do some guidance and hand holding of private. But there is an instrument in NEP which allows you to also monitor them very closely. And that instrument is triple SA.
जिसकी बात हम लोगों ने कई बार आपके सेक्रेटरीज SCRTs की कॉन्फ्रेंस में हमने कहा है। SSSA स्कूल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी चैप्टर 8.5 में पैराग्राफ 8.5 में है। नाउ व्हाट SSSA रिक्वायर्स इज कि किसी भी जगह प्रेफरेबली SCRT या स्टेट का जो सेकेंडरी स्कूल बोर्ड है उसमें आपको खाली IT पोर्टल बनाना है। तो स्टेट्स लाइक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वी वुड प्रेफर कि आप SCRT में या डायट जो भी आपका है इंस्टीट्यूशन उसमें करो, आपके पास बोर्ड नहीं है। अदरवाइज हमने CBSE को KV, JNV और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं जैसे एकलव्य मॉडल एटसेट्रा के लिए हमने उसको SSSA डिक्लेयर कर दिया है। दे हैव ऑलरेडी कम आउट विद अ फ्रेमवर्क, इट इज कॉल्ड SQAA, जो CBSE की वेबसाइट पे भी है, हमारी वेबसाइट पे भी है। उसको वो लोग अब ऑनलाइन पोर्टल बना दे रहे हैं एंड वो पब्लिक डिस्क्लोजर होगा। तो सारे स्कूल्स पब्लिकली डिस्क्लोज करेंगे कि वो कहाँ किस पोजीशन में है अभी, और वो सेल्फ डिस्क्लोजर होगा, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी अनलेस देयर इज अ कंप्लेंट। पेरेंट आके बोलेगा कि इसने डिस्क्लोज किया है कि इसके स्कूल में रैंप है, मेरा बच्चा डिसेबल्ड है, देयर इज नो रैंप, दैट इज द टाइम you get in. So in case Ladakh finds it difficult, you can join CBSE as the SSSA because you are going to CBSE anyway. That is a decision that your UT has to take. Okay. So this is an offer from our side. Secondly, you have में जब वो disclose करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं. Okay. So this is what I have to say, and if Manish, Ranjana or Indu have anything to add. Ladakh seems to have done a lot of work and in a very structured manner also in preschool. So all of them are at different level of development. To bring them on the same page and also to prepare them for school, the NEP says that a 3-month school preparation module is to be given to every child who enters into class 1. So when a child enters into class 1, we don't go directly into the syllabus or in the curriculum, but we give a 3-month school preparation module, which we have called as Vidya Pravesh. It has been launched by NCERT at the national level, and the states can adopt that. So we'll request please look at that and try to launch it from the coming academic session. In all the schools, including private schools. There is something, Manish. Several states जो हम लोग ने अभी तक रिव्यू किया है, we have already finished review of 28 states and UTs. Many states have developed their Vidya Pravesh module of 3 months, जिसमें weekly, daily activities की suggestions वगैरह भी हैं, which makes it very easy for the teacher कि उसको विद्या प्रवेश में क्या करना है। तो जो हमारे पास available हैं 3-4, वो हम जैसे लद्दाख है जहाँ पे रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, जम्मू कश्मीर, हम आपको सर्कुलेट कर देते हैं, आप उसको देख लें और उसमें से एडॉप्शन यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। We need to do a lot of hand holding from our side, and I have suggested to her that निष्ठा के लिए भी जो हमको मास्टर ट्रेनर्स वगैरह डेवलप करने हैं, वो फेस टू फेस वी विल स्टार्ट विद लद्दाख, ओके, and Ranjana will arrange for a knee training. Yes. So now we have had 2-3 sittings with the director NCERT, and we have requested him to prepare a Nishtha for Anganwadi workers, but we will be able to come out with it only next year, July or so. It will take some time because it has to be done in consultation with Women and Child Development Department. Nishtha for module on Vidya Pravesh also. Yes. It has out of those 12. So that is already there. Vidya and esteemed people on the dais and representatives from the state. My name is Virendra Sharma and the State Project Director of Smart Shiksha Himachal Pradesh. With me I have the members of the task force constituted for implementation of Nipun Bharat. Neeraj is a teacher educator. Then we have Nisha, who's a state body. She is also a teacher educator teaching at primary level. I also have Ranjana Nair, who's also a teacher educator. Now she is a DEO. I have Shiv Kumar, who's a faculty in SCRT Himachal Pradesh. Then Jaidev Negi, who's principal in Light Shimla. Then Rita Sharma, who's principal SCRT. And Manjula Sharma, who is a teacher educator working in the SPO.
This is a presentation about the implementation of Nipun Himachal Pradesh. In fact, in the month of October, we had planned to launch Nipun Himachal Pradesh on the lines of Nipun Bharat, but because of the code of conduct for the four constituent 3 assembly and 1 12-page document, which please ma'am. 0.67 lakh primary students who are in government schools, which are housed in 10,585 primary schools, and where 22,757 teachers are working. The mission, almost on the lines of Government of India, to improve learning outcome of grade 1 to 3 students for language and numeracy, including a strong EC school readiness component. This was basically a step-by-step plan. The design and launch, which was to be done in the year 21-22, now we would have it in the month of December. Covered in several international journals. So whenever I'm sort of browsing, I come across in somewhere in the US, UK, Moscow, so many places it has been covered. And I also want to mention that for all of you and even for you, you have mentioned कि assessment framework आप तैयार कर रहे हैं, tools तैयार कर रहे हैं. Assessment tools, item banks linked to learning outcomes have been prepared by NCERT. It is on Diksha, and you can download it, use it, tweak it the way you want to, adapt it, adopt it. So please start using it. बड़ी मेहनत लगती है. Since because I was in CBSE, we were working on this PISA. I don't know if you know, हम लोग दीक्षा पे 5 questions a week release करते हैं. And these are competency based items for classes 6 to 10. वो एक आइटम को डेवलप करने में 5 दिन लगता है, because it's competency based. So ये जो NCERT ने इतनी मेहनत करी है पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं, इस मेहनत को आप लोग यूटिलाइज करिए. Don't try to reinvent the wheel on this. Shri O.L. Mandlovi is Assistant Director SCRT ma'am. I'm also joined by Lokesh, he is FLN Coordinator in SCRT, and Mr. Shyam Prasad Sharma, Principal Director, and Vivek ma'am is one of our star APC, worked very hard and very productively during our NAS preparation ma'am. He is one of our greatest assets ma'am. We have Balram Chaturvedi, teaches in a primary school and very known for his very dedicated work. And I am also joined by Akhilesh, he also teaches in primary school. Sir. Sir, as you mentioned before I started my presentation, that there are critical enablers which are very important. 8 से 10 स्कूल इस स्कीम में कवर करने के लिए हम लोग फंडिंग करेंगे 60-40 बेसिस. Yes ma'am. ओके. और वो 1 अप्रैल से वो स्कीम शुरू हुई, और उसमें जैसे ये स्टैंडर्ड सेटिंग है, ये सब कुछ हम आपको देंगे. कहाँ पहुँचना, स्कूल अभी कहाँ है, उसको पहुँचना कहाँ है, उसके लिए हम आपके साथ मिल करके क्या क्या करने जा रहे हैं. एंड प्रॉपर फंडिंग विल बी गिवन टू स्कूल्स टू सेट अप इट्स ओन ICT लैब्स हैं, साइंस लैब्स, जो रिक्वायरमेंट होगी स्कूल की. टीचर ट्रेनिंग है, लर्निंग आउटकम्स को मॉनिटर करना, बच्चों की ट्रैकिंग करना, एवरीथिंग. ये स्कूल्स में खास करके आपको सीनियर लेवल मेंटर्स की जरूरत होगी. तो अभी आप अपना मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जो भी बना रहे हैं बना लीजिए. जब एग्जाम्पलर स्कूल्स आएंगे तो ये स्कूल्स को आपको काफी क्वालिटेटिव मेंटरिंग करवानी पड़ेगी. सो दैट इज वन थिंग आई थॉट आई शुड मेंशन. यू आल्सो मेंशन्ड कि how to teach grade 2 and 3 right now. I just want to mention कि आप जैसे भी पढ़ाएं, टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस नहीं होगा, टॉपिक्स के ऊपर लर्निंग आउटकम्स जो हमने डेवलप किए हैं उसके ऊपर फोकस होगा. आप वो लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए टेक्स्ट बुक यूज करते हैं या नहीं, इट इज इररेलेवेंट. नहीं करना चाहते मत यूज करिए, करना चाहते करिए. उसके अलावा भी 30 और तरह के डॉक्यूमेंट्स यूज करना चाहते हैं आप यूज करिए, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ लर्निंग आउटकम्स. इफ आई से कि द चाइल्ड शुड बी एबल टू रीड 45 वर्ड्स पर मिनट विद कॉम्प्रिहेंशन, इट डज नॉट मैटर कि वो आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ता है, कि न्यूज़पेपर से पढ़ता है, कि किसी जोक बुक में से पढ़ता है. जो मैं yesterday also I was telling the team कि बच्चों को अगर आप जोक बुक्स देंगे ना, उनकी आप देखेगा रीडिंग फ्लुएंसी कितनी बढ़िया होगी.
instead of your regular stuff, joke books, rhyme books, story books. These are the things जिसमें बच्चों को मजा आता है. तो ये थोड़ा आप लोग सोच के करिएगा. Yes, ma'am. Just I wanted to add on that context, ma'am. Grade 3 cohort is going to be very critical next year. So, in fact, my team suggested that they haven't done grade 1 because entire year has gone in lockdown. Grade 2 is partially done. So, in order to cover these grades without going to grade 3, probably we may be spending the entire academic year 22-23 in teaching them grade 1 and 2 levels of learning outcomes. So ma'am, we were looking at the political and other connotations because we distribute textbooks and somebody would may say कि साहब ये कक्षा तीसरी पढ़ाई नहीं रहे हैं. So basically that is one thing we were discussing with our minister to. इंटरप्शन हुआ है लर्निंग में. ये 2 महीने 3 महीने में आप यू विल नॉट गेट ओवर इट. अगर आप 2-3 साल इसमें धीरे धीरे लगा के करेंगे तो बच्चा बहुत स्टडी लर्नर बन जाएगा. इसलिए आप you will have to explain to your people there. Yes, ma'am. We understand it in the center. The whole world understands it. Ma'am. Not just us. ये लर्निंग जो गैप हुआ है ये सिर्फ हमारा नहीं है, पूरी दुनिया का है. कहीं आप नेशनल अचीवमेंट सर्वे करा लेंगे, वही रिजल्ट आएंगे जो हमारे आने वाले. इसलिए आप इसकी इतनी चिंता नहीं करिए. वो आएगा. इट इज ओनली फॉर प्लानिंग पर्पस. हम तो बिल्कुल क्लियर है मैम. We are also very clear. Ma'am, thank you so much. Okay. Yes ma'am. Then you have mentioned something which I found very interesting, which is something आप लोग replicate करिए. निष्ठा लॉन्च करने से पहले YouTube पे अवेयरनेस मॉड्यूल करना उस निष्ठा मॉड्यूल के बारे में. No wonder you have the maximum uptake of Nishtha. Yes, ma'am. We have seen it right from the beginning. In fact, I would always try to be part of that YouTube learn, ma'am, because I forgot to mention one thing, ma'am. We have made it compulsory for our BEOs, DEOs, CACs to take up NISTA modules and come up with coursework. We have created groups. They should share the coursework because unless they understand what is the module, they cannot go and provide any Absolutely. so-called I agree with academic assistance, ma'am. And I also want to request all of you have a look at इन्होंने जो टीचर ट्रेनिंग के वाइड साइज मॉड्यूल्स बनाए हैं, which is aside from Nishtha, whole pandemic, I don't know how many modules they have put up, very interesting modules. और ये दीक्षा पर हैं, it's available, आप लोग देख सकते हैं. I want to request all of you because आप इतना IT में since you're working so much, anything you make, आप ऐप बनाए, पोर्टल बनाए, प्लेटफॉर्म बनाए, कुछ भी बनाए, NDR compliant होना चाहिए. So NDR हमारे जो blueprint है उसमें we have given the norms and standards to be followed. They are all NIC has prepared it. Unless it is NDR compliant, you will not be able to take the benefit of NDR. NDR architecture is being built. So all of you please note it. Please tell your state governments. Okay. So thank you very much. Excellent presentation. Thank you so much, ma'am. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये कहा है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो अप टू 6 year olds वो आंगनवाड़ी में ही रहें, आप खाली हैंड होल्डिंग करिए. 6 year to 18 year हमारे पास रहें, उसका वो फंडिंग करेंगे. तो वो हमारा अगले 5 साल का फंड उन्होंने काट दिया है ECC. वी डोंट हैव फंड्स. तो ये थोड़ा सा एक बार डिस्कशन भी कर लीजिएगा एंड इसको यू कैन टेक इट इन योर वर्ल्ड बैंक स्कीम और समवेयर, कुछ आप सोचिएगा. बट प्रेफरेबल यही होगा कि आंगनवाड़ी में 5 से 6 वाले रहें, जहाँ नहीं है वहाँ गैप है वहाँ प्री स्कूल शुरू करिए प्राइमरी में. आज भी 5+ वाले आंगनवाड़ी नहीं जा रहे हैं, पहली कक्षा में आ रहे हैं. यू हैव अ वेरी स्पेशल प्रॉब्लम, आपको करना पड़ेगा. Happening in the SCRT in Gujarat. In fact, we use the services of Dr. Joshi and his team a great deal in formulating our national policies also. So thank you very much. एक आप लोग ने जो ये लैंग्वेज टीचिंग का कुछ ट्रेनिंग किया है टीचर्स का, उसका कुछ मॉड्यूल का फ्रेमवर्क हमारे साथ शेयर करिए, बिकॉज दिस सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट यू आर डूइंग. यू हैव ऑलरेडी सेड कि आप विद्या प्रवेश में एलओस को अलाइन कर रहे हैं, वो दैट इज अ गुड थिंग. यू मेंशन्ड वाचन अभियान.
हम लोग यहाँ से मिनिस्ट्री से वी हैव प्रिपेयर्ड अ रीडिंग कैंपेन फॉर 100 days, क्योंकि अभी आप लोग के स्कूल्स खुल रहे हैं और रीडिंग पे ही डिपेंडेंट है whether the child's literacy and numeracy will proceed or not. सो रीडिंग कैंपेन एक बड़ा इनोवेटिव हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, एंड वी विल आई थिंक बाय होपफुली बाय नेक्स्ट वीक वी विल बी शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू, उसकी डेट्स वगैरह. एंड उस 100 days कैंपेन को किस तरह से करना है, वीकली आपको क्या करना है, 1 to 3 लेवल पे क्या होगा, एवरीथिंग वी हैव इंडिकेटेड. आप उसके ऊपर अपना भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो हमारा तो हमेशा सजेस्टेड फॉर्मेट होता है, बट यू कैन अडॉप्ट दैट ऑल्सो. हम लोगों ने 1 to 8 के लिए डिज़ाइन किया है. सो वी विल सून speak about it also. We will have a online meeting also. We will make a presentation before all of you. ये जो on demand training है, this is very interesting. It's a very good idea. It is worth replication. अगर आप मुझे इसके ऊपर एक पेज का डॉक्यूमेंट बना के भेजें, we would like to circulate it to all the states. This is a teachers के लिए this is an extremely innovative practice for teacher training. And I have not heard about this kind of a thing anywhere else. तो ये थोड़ा हम इसको रेप्लिकेशन के लिए भेजना चाहेंगे. आपका जो ब्रिज कोर्स है ज्ञान से तो वो विनोद हैड शेयर्ड इट विद मी, और वो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है. ओनली थिंग इज वो चूँकि गुजराती में है, सो आई डोंट नो हाउ यू पीपल कैन सी इट और यूज इट, बट द ब्रिज कोर्स इज वर्थ सीइंग. I have gone through it. It's really worth seeing. A lot of effort has gone into it. It's a continuum, the bridge course. How it connects to the previous class and to the next class is very evident. अब थोड़ा सा अगर I don't know, आप भेजिए, शेयर करिए स्टेट्स के साथ, आप हमको दे दीजिए दोबारा से. I have sent it to NCERT, या श्रीधर के पास है, बट आप मुझे रंजना, मनीष, किसी को शेयर कर दीजिए. We will share it with the states in the group if it is useful for anybody. So thank you very much, Gujarat. वॉलेंट्री टीचर्स को ऑन द जॉब जो प्रॉब्लम उसको हुई है, उसको वॉलेंट्री आने के लिए आपने शनिवार का दिन निश्चित किया ब्लॉक पर. तो क्या वो सब्जेक्ट वाइज आप शनिवार तय करते थे, या किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो किसी भी शनिवार को वो आ जाए, तो कैसे मैनेज करते थे? 2 ही सब्जेक्ट है, लैंग्वेज एंड मैथ्स फॉर क्लास 1 and 2 जी. तो दोनों के रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है. एक लैंग्वेज रूम है, एक मैथ्स रूम है. तो टीचर जो कक्षा 1-2 में हमारे यहाँ होती है और अगले 1 मंथ में वो लोग अपने स्कूलों में शेयर करते हैं, तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ टैग, टीचर एक्टिविटी ग्रुप. इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इंग्लिश के. हमारे साथ शेयर करिएगा इंग्लिश में. आपका क्लस्टर कॉन्फ्रेंस इज अ वेरी गुड टेकअवे फॉर अस, एंड काफ़ी सिस्टमैटिक उसका भी बुक है मैम, बनाया है हमने क्लस्टर कॉन्फ्रेंस का भी. बुक नहीं, आप एज अ डॉक्यूमेंट हमको 1.5-2 पन्ने का कि आप कैसे करते हैं. एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि महाराष्ट्र और केरला में इतना प्रॉब्लम रहा है कोविड का, इवन राइट नाउ वी आर स्टिल फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. आई एम सो ग्लैड कि आप लोग इतना एफर्ट्स इसमें पुट इन कर पाए हैं. वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू मैम. Vidya Pravesh. It's in the process. Samagga Shiksha Mission, and the team West Bengal today is represented by Sri Gautam Bhattacharya, who is a research fellow in the SCRT, and Dr. Vishwaranjan Manna, who is the principal diet in Purva Medinipur district, and Sri Purnendu Chatterjee and Sri Ratul Guho, both resource teachers and members of the State Expert Committee on School Education. Ma'am, I am very new to the system and I have just joined the Samagga Shiksha Mission team in the last 15 days or so. So I request 2 member resource teachers of the members and the members of the State Expert Committee, Sri Purnendu Chatterjee and Sri Ratul Guho, to make the presentation on behalf of the state. Ma'am, I am going there. This afternoon would chiefly focus on foundational literacy and numeracy, its appropriate status, and the future plan of work in West Bengal. But respected Secretary Ma'am did say in her opening speech that the states can also point out the overarching developments
in the fields of education that they are doing. So what we'll try and do is we will keep this foundational literacy and numeracy as a center and then radiate outside and outward to show to showcase what West Bengal is doing. As long as you limit it to FLM. Yeah, as long as it is limited to FLM, for sure. Now, you see, basically. नहीं पढ़ते थे हम, पेड़ के नीचे एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके पढ़ते थे। उनको क्लर्क्स चाहिए थे उनके रेलवे सिस्टम और पोस्टल सिस्टम के लिए, तो हर चीज बाउंड्रीज बनाई गई। यूनिफॉर्म होगा तो ऐसे आप दिखोगे, जैसे जेल में होते हैं उस तरह का, जेल की तरह बाउंड्री वॉल बनाया गया कि कोई भागेगा नहीं। क्लासरूम में आप अपने अपने क्लास में बैठोगे और ये स्ट्रक्चर्ड करिकुलम पढ़ोगे, इसके बाहर नहीं जाओगे, टेक्स्ट बुक पूरी रटोगे। So these are legacies, and this is exactly what he's saying. We need to get out of this. We need to get back to our basics, get in touch with the environment. So there are many schools. आप अगर उसमें जाओ, साउथ में जो ऋषि वैली है फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम्स हैं लेकिन बच्चे पेड़ के नीचे ही पढ़ते हैं। और बच्चों का काम भी यही है, दिन में जाकर के तितलियों के कलर ढूंढ करके आओ, उसके मतलब those are the kind of things they are doing to understand real life. I think he has a point. We all need to think about it. Thank you so much, ma'am. तो सर जिस तरह पूछ रहे हैं विदाउट यूनिफॉर्म, आई मीन अगर यूनिफॉर्म देंगे, यूनिफॉर्मिटी जो हम दिखता है वो कलर में दिखता है, लेकिन फिर भी उसमें अमीर गरीब का डिफरेंस होता है। द वे ऑफ ड्रेसिंग से ही पता चलता है कौन सा बच्चा गरीब घराने से, कौन सा कलर में तो सेम है एग्जैक्टली, लेकिन किस तरह से उनके माता पिता ने उसको ड्रेसअप किया उससे पता है कौन सा अच्छे घराने से कौन सा नहीं है, किसके घर में आयरन है किसके घर में आयरन नहीं है। सो वो भी कॉम्प्लेक्सिटी उनमें पैदा कर सकता है, वो भी एक बहुत बड़ा पेरेंट क्रिएट कर सकता है। वन मोर थिंग, उससे टीचर का भी, अगर टीचर को प्रेस आयरन करके आने वाला बच्चा ज्यादा पसंद करने लगेगा, ये एक बहुत बड़ा सोशल कंस्ट्रक्शन क्रिएट होते जाएगा और हर एक टीचर हर एक बच्चे को आयरन के साथ विद वेरी वेल लुक पसंद करने लगेंगे। ये बहुत खराब चीज होगा सोसाइटी के लिए और स्कूल के लिए, क्योंकि हर बच्चा तो आयरन नहीं कर सकता है, हर टाइम नहीं धो सकता है। सो दिस इज द इशू। ये चीज मैं कहना चाह रहा था कि यूनिफॉर्म से आपका नाम क्या है? सादिक अली मैम, सादिक अली। सादिक अली, यस मैम। आपका मुझे कांटेक्ट नंबर Sure, आप दे के जाएंगे। You are going to act as my resource at the national Thank level. you. I really like the way you do it. Thank you so much. Okay, मध्य प्रदेश जी, पहले तो 2-3 अपेक्षाएं हैं विभाग से। मैं स्कूल है शिक्षकों का मोटिवेशनल प्रशिक्षण हो और उसमें उनकी एम्पावर बढ़ाने की पुट भी हो साथ में। बस केवल एम्पावर बढ़ाने के लिए और मोटिवेशनल, दो तरह के प्रशिक्षण इन कक्षाओं के लिए आवश्यक है। जैसे ये पहला पॉइंट है। हाँ जी। दूसरा ये है कि जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो भी है जो हमारे विद्यालय में आता है, वो इतना कैपेबल हो कि वो हमें सपोर्ट करे विद्यालय में आके, वो हमारे काम को ना रोके, ना हमसे कुछ जानकारियां हासिल करे, बल्कि हमारा समय खराब ना करके वो हमारे विद्यालय को कुछ सपोर्ट करे। इतना कैपेबल आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है। एंड धनराजू, व्हाट आई विल रिक्वेस्ट इज, सिंस ही हैज रेज्ड दिस पॉइंट एंड ही मस्ट हैव सोचा भी होगा इन्होंने काफी, थोड़ा इनकी तरफ से मुझे एक पेज का डॉक्यूमेंटेशन भेजो कि हम कैसे कर सकते हैं। जी, ठीक है। और तीसरा बिंदु है कि शिक्षक को विद्यालय में अपने तरीके से सिखाने की स्वतंत्रता भी हो, वो अपने तरीके से वहां पर काम कर सके, ये उसको इतनी फ्रीनेस मिलनी चाहिए। और मैंने एक काम किया अपने यहाँ समुदाय के लोगों के साथ, वो जो पीटीएम की जो बैठक होती है, मैंने 2 तरह से उसको अपने विद्यालय में बुलाया। एक तो कक्षा पहली दूसरी के लिए अलग तरीके से अलग दिन बुलाया है, उस पर बच्चों के परफॉर्मेंस की कोई बातचीत नहीं की जाती है। उस दिन केवल कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए बच्चों के साथ घर में कैसे बिहेव करना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करना है, जिससे कि हम लोग ये चाहते थे हमारे विद्यालय के साथी सब मिल करके कि घर में और विद्यालय में बच्चों के साथ एक एटीट्यूड गार्जियन का बदले कि वो केवल एकेडमिक तरीके से उनसे बातचीत करना प्रारंभ करें। तो बच्चों का सीखना घर में भी होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल लगातार नहीं आ पा रहे हैं,
वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में नियमित उपस्थिति बच्चों की नहीं रहती है, तो गार्जियन का जो एटीट्यूड है वो बच्चों को सिखाने के तरीके का हो घर में भी। उनसे केवल कैसे बातचीत करते हो, कक्षा तीसरी चौथी पांचवी के बच्चों के जो गार्जियन की बैठक बुलाते हैं उसमें बच्चों के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये दो तरह से हम पीटीएम की बैठक बुलाने का अपने विद्यालय में प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू। जिस पे आजकल हम लेटेस्ट जुड़े हुए हैं, ट्रेनिंग्स जो ऑनलाइन हो रही है, मटेरियल बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, बट फिर भी जो ट्रेनिंग्स है वो ऑफलाइन मोड पे चलनी चाहिए। जैसे हमारे साथी ग्रुप मध्य प्रदेश से सर ने बोला था कि अब जरूरत है टीचर मोटिवेशन की, बट जब हम ऑफलाइन मोड पे आते हैं किसी भी ओके। और सेकंड है मिड डे मील। जो मिड डे मील है ये भी एक हमारे जिस गोल के अचीवमेंट के लिए डिस्ट्रैक्शन होता है, तो ये एसएमसी और अदर्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन पे जाना चाहिए। थर्ड मैं बात करना चाहूँगी असेसमेंट में, कि असेसमेंट टीचर असेसमेंट के लिए फ्री होना चाहिए और एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी जवाबदेही होगी, क्योंकि वो कैसे गोल अचीव करता है। क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँगी कि अगर हमको कहा जाए कि 1 मंथ में करना है असेसमेंट या 2 मंथ में करना है, तो बच्चों की सीखने की गति अलग अलग होती है। क्योंकि हम लोग को 23 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस हो गया है इसमें, तो उसमें तनाव युक्त हो जाता है मुक्त होने की जगह टीचर, तो वो गोल अचीव करने में बैरियर्स होते हैं। एक मुझको ऐसा लगता है कि जो हमारी SCRT हो सकता है स्टेट का मामला हो, बट जो SCRT और डाइट्स हैं यहाँ पर एक प्राइमरी से भी सेल डेवलप होना चाहिए, और उसमें जो एक्सपीरियंस होल्डर टीचर होते हैं जिनके रिटायरमेंट के लगभग 5 साल रह जाए, जो भी हैं इनोवेटिव टीचर्स हैं, वहाँ पर उनके सेल होना चाहिए जो अपने रिटायरमेंट से पहले अपना विजन सबको दे सकें लार्ज स्केल पे। ओके, थैंक यू। This can be done in your state by yourself. It doesn't need us. नमस्कार मैम। जैसे कोरोना खत्म हुआ और हमारे स्टूडेंट्स आने शुरू हुए तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारी बगिया फूलों से भर गई। प्राइवेट से गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे आए, तो वो जो एडमिशन है उसका रिटेंशन के लिए मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मैं इतने उससे बोल सकूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं बच्चों में, इमोशनली, फिजिकली, सोशली, वो जो पहले का था उससे बहुत अंतर आ गया क्लासरूम में। तो न्यूरो साइंसेस का, जैसे साइकोलॉजी का एक अपना अहम रोल रहा है, होता है, ऐसे कहीं न्यूरो साइंसेस को हमने अभी अपने करिकुलम उसमें या पेडागोजी में हमने नहीं लिया है कॉन्सेप्ट्स में। तो अगर हम वो जो फाइंडिंग्स है न्यूरो साइंसेस की लैंग्वेज लर्निंग के लिए या कनेक्शंस को रिलेशंस के लिए, अगर हम उसको ऐड करें और हम टीचर्स उससे कहीं ना कहीं लिंक हो, वो फाइंडिंग्स को अप्लाई कर सके, तो मुझे लगता है तो बच्चों में एक बहुत अच्छी उपलब्धि दिखाई दी। वो खुशी खुशी स्कूल आते थे और जो भी चीज़ें हम उन्हें सिखा रहे हैं, जैसे क्षेत्रफल ही सिखाना है, और ग्राउंड पे जब हम उसको मैपिंग करके सिखा रहे थे तो बच्चे उसको बहुत एंजॉय भी कर रहे थे और बहुत डीपली समझ भी रहे थे, जो शायद हमारी नई शिक्षा नीति की मूलभूत ये है। तो वो जो स्ट्रक्चर के बाहर, but an actual class lecture demonstration. So Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya have already adopted it. So even during the pandemic, if they had required any recruitment, they were doing online lecture demonstrations. Otherwise, it's face-to-face lecture demonstration. So all of you can use that part of the policy. Yeah. अभी जो टेक्स्ट बुक में प्रचलन में है, खासकर मैथ की मैं बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 1 में वो 99 तक की बात करता है, जबकि निपुण भारत में 999 की बात करता है। तो ये जो डिफरेंस है मैम, ये एक्चुअली हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक हम लोग उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। इस पर मैडम मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि टेक्स्ट बुक्स जो हैं दे आर ओनली एन एड टू लर्निंग। जो लर्निंग आउटकम्स हैं वही इम्पोर्टेंट हैं इस देश के लिए, निपुण भारत के लिए, 1ली से 12वीं के लिए, प्री स्कूल के लिए। टेक्स्ट बुक इज जस्ट वन ऑफ द टूल्स टू बी यूज्ड। टेक्स्ट बुक के अलावा भी 50 टूल्स होते हैं। तो आप लोग को अब कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जैसे निपुण भारत में आपने देखा कि गोल्स, कॉम्पिटेंसीज हमने ले डाउन करी हैं,
उसी हिसाब से जो सीनियर क्लासेस हैं उसमें भी लर्निंग आउटकम बेस्ड स्टडीज ही कराएं। हम ये हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं, आज की तारीख में अगर आप पीसा में जाएंगे ना, आप लास्ट आएंगे। पीसा इज कम्प्लीटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बॉदर ही नहीं करता आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, सिर्फ लर्निंग आउटकम बेस्ड है। हम लोग को उसकी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वही दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 21st सेंचुरी। आपकी टेक्स्ट बुक इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेंचुरी। टेक्स्ट बुक एज अ टूल इज अ रिक्वायरमेंट, बट नो, इट्स नॉट द ओनली थिंग जिससे पढ़ाई हो सकती है। ये थोड़ा आप लोग सोचिए इसके बारे में। हाँ जी, वन लास्ट इज फ्यूचर रेडीनेस, स्किलिंग, everything is part of it. Somebody spoke about ethics and values. आप देखिए इसमें it's an integral part of this, जो हमारे पिछले learning outcomes में नहीं था। तो हमने यहाँ से beginning करी है और ये आगे बढ़ेगा। जब तक हम मार्कलेस, ग्रेडलेस जो है असेसमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड, स्किल बेस्ड जो है बच्चों का आउटकम नहीं देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एलिमेंट्री लेवल पर, खासकर प्राइमरी में 1 to 5 there is no marks, there is no grade for each student. Otherwise जब असेसमेंट नेक्स्ट में भी परसेंटेज के इस तो हम लोग ने कहाँ बोला आपको मार्क्स देने? जी, आप पूरी निपुण भारत की किताब में कहीं जी भी मैम, बताइए मुझे मार्क्स लिखा हो या पेन पेपर टेस्ट लिखा हो। यस मैम, तो इसको स्ट्रिक्टली अगर हो एग्जैक्टली, इट इज जस्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट, और उसी को अगर आप स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं टू टेस्ट। थैंक यू वेरी मच। भाषा गणित के रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा। होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा। अब हर बच्चा पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। अब हर बच्चा पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। पढ़ा लिखा भारत में पूर्ण नया भारत, पढ़ा लिखा भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, विज्ञान से बनाया इंडिया, निपुण से कमाया इंडिया। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना।